Hello, welcome back. Yesterday we were discussing about Ohm's law and resistance, the concept of resistance as well as resistivity. These things we have learned. So, before starting some numericals, I will let you be aware of one more concept that is called temperature dependence of resistance. Temperature dependence of resistance. Temperature dependence of resistance. Before letting you know about this term, I will discuss about limitations of Ohm's law. Limitations of Ohm's law. And then, in continuation with these limitations, we will study temperature dependence of resistance. These two are interrelated. Actually, V is equal to IR. R is a constant. Resistance of a conductor is constant as per Ohm's assumption. Okay? So then there will be some modification required. If I plot a graph showing V on x say y axis and I on a x axis, this equation is a linear equation, so proper graph will be a linear graph. That means if you increase the voltage, current has to increase. If you increase the potential difference, current has to increase. This is the proper representation of Ohm's law by a graph. Does it follow practically? We are interested in knowing it. Practically यही होता है क्या, ये हमको चेक करना है. We are going to ensure whether it happens. Now if I take a metallic wire and if I apply a potential difference across it, which is a variable potential difference, so potential difference can be gradually increased. For the sake of convenience, you assume it like this. Initially, no potential difference is zero. Zero potential difference, no current will flow. And as V goes on increasing, theoretically current should go on increasing as resistance is being constant as per Ohm's law. Practically what happens? Practically this law is obeyed up to a long range of potential difference. But further, with the increase in potential difference, current does not follow the same linear path, but it bends towards the current curve. Current line. You will say, why sir does it happen? Why does it deviate from the theoretical path? Theoretical path तो linear था, लेकिन यहाँ ये कर्व क्यों हो गया? उसने अपना रास्ता क्यों बदल दिया? क्यों भटक गया वो रास्ते से? अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम कंटिन्यूसली बढ़ाते चल रहे तो करंट भी कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए, लीनियर रिलेशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आप दिखा रहे हो कि ये नहीं फॉलो करता है. What is the reason behind it? The reason behind it is, with the increase in potential difference, more and more current flows through this wire. I am talking about metals, I am talking about conductors. Okay, so with the increase in potential difference, the current in the wire increases. Obviously, it produces more heat. More current, more heat will be produced in the conductor. Due to the more heat, the temperature of the conductor increases, and with the increase in temperature, its resistance increases. With the increase in resistance, the current doesn't get the same value as predicted, doesn't follow the same path as predicted, but current थोड़ा सा कम होगा क्योंकि resistance बढ़ गया है. Resistance बढ़ने की वजह है temperature. With the increase in voltage, with the increase in potential difference, there is an increase in current. Due to the increase in current, more heat is produced in the wire, which due to increase in temperature of the wire, more heat, the wire gets heated. With the increase in temperature, the resistance increases. As it doesn't remain constant, it no longer remains constant. वो constant नहीं रहता है. जैसे जैसे आगे जाओगे, एक हद के बाद कुछ हद तक उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, इसलिए आपको करंट का डेविएशन ज़्यादा नहीं दिखाई देगा. लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते चलते हो, आगे आगे ये रेजिस्टेंस बढ़ते चलेगा. रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जैसे करंट बढ़ना चाहिए उसकी कंपैरिजन में ये रेजिस्टेंस थोड़ा करंट थोड़ा कम बढ़ेगा, मतलब जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा कम करंट कम बढ़ेगा. तो ये डेविएशन है
इसकी वजह है हीट, और वही अब हमको यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, और उसका एक इक्वेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कंसिडर करो कि एक वायर मैंने ली है, मेटालिक वायर, और इसका रेजिस्टेंस मैंने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे नोट किया, विच इज आर नॉट। आर नॉट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड RT is the resistance at a certain higher temperature, say T degree Celsius. Resistance at T degree Celsius, which is different at 0 degree Celsius. Okay, 0 degree Celsius and T degree Celsius. These are the two temperatures at which I have recorded, I have measured the resistances of the wire. Wire is same, I have not changed it, except the temperature, nothing has been changed. Now, the important factor is that this change in resistance RT minus R naught, this is the change in resistance. It depends upon three factors. As usual, number one is material, number two is original resistance, and number three is rising temperature. Rising temperature. So RT minus R naught is directly proportional to R naught. R naught is the original resistance at 0 degree Celsius. Then RT minus R naught is directly proportional to, now rising temperature is T minus 0. We have taken the reference as 0 degree Celsius. From 0 degree Celsius, the temperature rises by T degree Celsius. Now, if the third factor is material, which is to be taken into account, that we are going to take at a later stage. Now, if I combine these two equations, I get RT minus R naught is proportional to R naught into T. RT minus R naught is proportional to R naught into T. Now, to remove this proportionality constant, we remove this proportionality sign, we take a proportionality constant which is alpha. RT minus R naught is equal to, I have removed this proportionality sign by using this constant alpha R naught T, alpha R naught T. This alpha is called the temperature coefficient of resistance. Alpha is called temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance, and of course it is a property of material, and that is why the material comes into picture. Okay, RT minus R naught is equal to alpha R naught T. Now, how will you define alpha? Alpha is equal to RT minus R naught divided by R naught into T. Alpha is equal to RT minus R naught into R naught into T. So how can you define? Alpha is temperature coefficient of resistance of a material, is defined as change in resistance. RT minus R0 represents change in resistance per unit original resistance. In denominator R naught is there, so it is per unit original resistance per degree Celsius rising temperature, per degree Celsius rising temperature. This is how you can define alpha. Alpha is the increase in resistance. RT minus R naught represents increase in resistance per unit original resistance per degree Celsius rising temperature, per degree Celsius rising temperature. Now, one more equation I have to make to calculate RT. RT is equal to R naught plus alpha R naught T, or to find the resistance you get like this: RT is equal to R naught into 1 plus alpha T. This is how you are going to use it. Of course, if you are given resistance at certain other temperature, you can do it like this: RT2 is equal to RT1 into 1 plus alpha T2 minus T1. This formula can also be used for solution of MCQs. This is how you can solve this example, and this is formula which is important from the point of view of resistance. तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं और इसका अच्छे से समझ में लो. ठीक है, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस चेंज होता है. अब मैंने बढ़ता है नहीं बोल रहा हूँ, क्या होता है इसके बारे में मैं अगले सेगमेंट में आपसे बात करूंगा. तो रेजिस्टेंस चेंज होता है. अब कुछ मटेरियल्स में रेजिस्टेंस बढ़ता है, जैसे कंडक्टर से, मेटेलिक कंडक्टर से, मेटेलिक
कंडक्टर से, तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। तो RT is greater than R0, RT is greater than R0. In that case, this numerator is positive, alpha is positive. So metals have positive temperature coefficient of resistance. For materials, the resistance increases with temperature. There is an increase in resistance with the increase in temperature. So metallic conductors have positive temperature coefficient of resistance. Remember, metals have positive temperature coefficient of resistance. The second category of materials is semiconductors. Semiconductors are neither good conductors nor bad conductors. They are in between. And in that case, for semiconductors, with the increase in temperature, listen to this point carefully. With the increase in temperature, resistance decreases. Instead of increasing, the resistance decreases. RT is less than R0. RT is less than R0. And in that case, RT is less than R0. In that case, alpha is negative. And so semiconductors have NTC. What does this NTC means? Negative temperature coefficient of resistance. NTC, negative temperature coefficient of resistance. This is for semiconductors. What about insulators? There is no much change in their resistance values because they are very high, so they are independent of temperature. So we ignore this term for insulators, but this is an important factor for what is called metals and semiconductors. This term is important for metals and semiconductors. Okay, so metallic conductors have positive temperature coefficient of resistance, and what about this? Semiconductors have negative temperature coefficient of resistance. This point has to be noted. Okay, यहाँ ये बात हम या आर्टिकल यहाँ हम खत्म कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप हम कुछ न्यूमेरिकल्स का इसके ऊपर हम तड़का लगा देते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स में सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं। तो अब मेरा फोकस न्यूमेरिकल्स के साथ साथ MCQs और इसके लिए भी रहेगा। तो जितने बुक्स में आप कोई भी एक बुक अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व करो, आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। इन द फिगर alongside, how will the reading on the ammeter change? How will be the reading on the ammeter change when the key K is closed? When the key K is closed. एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। आप बोलोगे कि सर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आपने पढ़ाया है। यहाँ एक रेजिस्टेंस मैं दिखा देता हूँ। यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ इनके बीच में एक की कनेक्ट किया हुआ है, ये की है, और अभी ये की हमने ओपन रखा हुआ है, और ये यहाँ एक एमीटर दिया हुआ है और यहाँ एक बैटरी है। इसका EMF E है। अब EMF और PD क्या होता है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस 2R है, ये रेजिस्टेंस 2R है, ये R है। हाँ बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अब दो अलग अलग कंडीशंस, पहले की ओपन है और दूसरे की क्लोज है, तो करंट में क्या फर्क पड़ता है, हमको रेशियो फाइंड आउट करना है करंट का। नंबर 1, व्हेन की K is open, this key K is open, यहाँ ये की हमने ओपन रखी हुई है, तो ये लाइन डिसकनेक्टेड है, इसमें से करंट पास नहीं होगा, तो सीधा सीधा ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3R और इनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3R, और ये 3R पैरेलल होंगे। अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे तो उनका रेजिस्टेंस उनके आधे के बराबर होता है। तो यहाँ R इक्विवेलेंट इस कंडीशन में आ जाएगा 3R/2 आ जाएगा 3R, और I1 होगा R इक्विवेलेंट 1 कहूँगा मैं पहली कंडीशन, E/3R/2 मतलब 2/3 E/R। ये अगर की ओपन है तो ये करंट पास होता है। अब मैं देखूंगा नंबर 2, व्हेन
key K is closed, when key K is closed, आप देखिए हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये आपको आइडिया दे दूंगा मैं। तो ये की अब हम क्लोज करेंगे, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब एक ही पॉइंट होगा अब ये। तो ये R और 2R पैरेलल होगा, और ये 2R और R पैरेलल होगा। तो अब मुझे R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, R इक्विवेलेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और इनका अरेंजमेंट सीरीज में होगा। मतलब ये सर्किट कैसा बनेगा, पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा। R और 2R इनके पैरेलल है, RP दो अगर पैरेलल है, यहाँ फॉर्मूला यूज करो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहाँ R इंटू 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R। तो बच्चों ये हो जाएगा 2R स्क्वायर बाई 3R, मतलब ये हो जाएगा 2R बाई 3। मतलब इन दोनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस मैं यूज कर सकता हूँ 2R बाई 3, ये पहले 1 2 की वजह से बजाय, और इन दोनों की जगह भी उतना ही आएगा क्योंकि ये वही कॉम्बिनेशन है, खाली नीचे ऊपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी रेजिस्टेंस 2R बाई 3 आएगा। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और ये लाइन अब हमने जोड़ दी है, मतलब ये कॉमन पॉइंट हो गया है। तो ये कॉमन ये पैरेलल पॉइंट होगा, ये एक पैरेलल पॉइंट होगा, ये आप ध्यान से सुनो। और यहाँ ये अब ऐसे से स्टिक हो गई है। अब I2, तो R इक्विवेलेंट इस कंडीशन में R इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू 2R बाई 3 प्लस 2R बाई 3, इट विल बी 4R बाई 3, 4R बाई 3। और I2 इज इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट 2, R इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू E अपॉन 4R बाई 3 होगा। मतलब बच्चों ये आ जाएगा 3E बाई 4R। और I2 अपॉन I1 अगर मैं ये रेशियो लेता हूं तो ये 2E बाई 3R डिवाइडेड बाई 3E बाई 4R। ये E बाई R कैंसिल होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 2 8 अपॉन 9 होगा, 8 बाई 9 होगा। तो इस तरीके से I2 विल बी I2 उल्टा था, सो इट विल बी 3E बाई 4R, और यहाँ पे होगा 2E बाई 3R होगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9 और ये 9, तो I2 इज इक्वल टू 9 बाई 8 टाइम्स I1 होगा। इस तरीके से ये करंट चेंज होगा। ये दोनों सिचुएशंस आपको फर्क समझ में आ जाएगा। पहले कंडीशन में की ओपन रखी थी और दूसरे कंडीशन में की क्लोज रखी थी। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। यहाँ मैंने ओम्स लॉ और सीरीज पैरेलल के बारे में आपको जो कल मैंने इंफॉर्मेशन दी थी उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। चलो आगे बढ़े। मैं कुछ सैंपल एग्जांपल्स ले रहा हूं जो आपके काम में आ जाएंगे और आपको उसका यूज होगा, वो आप सॉल्व करने के लिए काम में ला सकते हो। आप इसको देख लेना, इसको एक बार दो बार आप समझ में लो, डाउट आ गया तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इन द एडजेसेंट फिगर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2? R1 और R2 के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं। ये 69 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ R1, यहाँ R2, ये इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ करंट पास होता है 1 एम्पियर, यहाँ करंट पास होता है 0.5 एम्पियर। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा ये देख लो। तो ये पूरे MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, आपका नॉलेज अच्छा बढ़ जाए इसके लिए। ये दो एंड पॉइंट्स ले लो आप पहले, ये दो एंड पॉइंट्स ले लो तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल है। आप बोलोगे कि सर ये लाइन तो इंक्लाइंड है। पैरेलल की कंडीशन ऐसी है कि एंड पॉइंट सेम होने चाहिए, मतलब ये एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। मैंने रेजिस्टेंस ऐसा लगाया है
समझो। और दूसरा रेजिस्टेंस मैंने ऐसा लगाया है। आपका पैरेलल का मतलब आपको क्या लगता है कि एकदम लाइन पैरेलल दिखनी चाहिए, वैसी कंडीशन नहीं होती है। एंड पॉइंट्स कॉमन है, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो यहाँ मैं चाहे तो आपके लिए इसको नाम देता हूँ A और B, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें करंट जाता है I1, तो इसमें करंट जाएगा I2, और पोटेंशियल डिफरेंस AB के अक्रॉस सेम होता है। तो यहाँ लिखो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। तो 1 इंटू 20 इज इक्वल टू I2 हमें पता नहीं है इंटू 10, तो यहाँ I2 आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इस वायर में 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर करंट, वो 10 ओम रेजिस्टेंस में। अच्छा यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ से करंट आ रहा होगा तभी ये दोनों में बढ़ जाएगा, पीछे से करंट आ रहा है। तो यहाँ 2 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है, मतलब इस जंक्शन की तरफ 3 एम्पियर करंट बाहर जा रहा है, तो इसकी तरफ भी अंदर करंट आएगा 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर करंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं C और B नाम देता हूँ, C और B। तो ये 10 और 20 एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनकी जगह मैं एक ही रेजिस्टेंस यूज करूंगा। तो इसको मैं R1 कहता हूँ, इसको मैं R2 नहीं, अब नाम तो हो गए हैं, तो इसको हम P और Q कहेंगे। तो P और Q का इक्विवेलेंट मैं निकाल लेता हूँ। तो RPQ इज इक्वल टू P इंटू Q अपॉन P प्लस Q। तो 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10, तो 200 बाई 30, ये हो जाएगा 20/3 ओहम, 20/3 ओहम। मतलब इन दोनों की जगह मैं एक ही रेजिस्टेंस यूज करूंगा 20/3 ओहम। अब दूसरा भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। ये भी तीसरा रेजिस्टेंस इनको पैरेलल ही है, और C और ये कॉमन है। तो इनके बीच में अगर 20 ओहम का रेजिस्टेंस है, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ देखो 10 इंटू 2 या यहाँ 20 इंटू 1, तो यहाँ दोनों की जगह 20 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर इसके बीच में भी 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, डायरेक्टली भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ R2 इज इक्वल टू V अपॉन I लेना है। तो यहाँ 20 डिवाइडेड बाई 0.5 होगा, मतलब ये 1/2 होगा, तो ये 40 ओहम का आपका R2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मिल गई मुझे 40 ओहम, 40 ओहम मिल गई है। अब पूरा सर्किट आप देख लो, पूरा सर्किट देखो। ये R1 जो है पहला रेजिस्टेंस R1, ये देखो यहाँ तक, यहाँ 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ 3 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब पीछे से करंट आने वाला है 3.5 एम्पियर। 3.5 एम्पियर इधर आएगा, और इसमें से इधर जाता है ये 40 ओहम है, और इसके साथ में इन दोनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस पैरेलल आता है 20/3 का। तो ये 20/3 ओहम और 40 ओहम एक दूसरे को पैरेलल है, इनकी जगह मैं एक ही रेजिस्टेंस यूज करूंगा, और ये R1 मुझे फाइंड आउट करना है। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो पहले तो इन दोनों का पैरेलल और इनके साथ ये सीरीज में आ जाएगा। मैं दोबारा ये एग्जांपल आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। 20/3 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 20/3, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया, मतलब इन दोनों की जगह यहाँ एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसके साथ सीरीज में R1 आएगा, उसके साथ R1 सीरीज में आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, या उसको मैं और एक तरीका बोल दूंगा। तो इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है, और सीधा तरीका बता देता हूँ, ये 69 वोल्ट है, इसमें से 20 वोल्ट तो ये आके ये दोनों मिलके कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ केवल 49 वोल्ट बचेगा। 49 वोल्ट यहाँ कंज्यूम होता है, 20 वोल्ट यहाँ कंज्यूम होता है। तो यहाँ R1 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 3.5 करो, मतलब 49 डिवाइडेड बाई 7/2 करो, तो ये 7 7 49 इंटू 2, इसका आंसर होगा 40 ओहम। R1 हो जाएगा 40 ओहम। हाँ, बहुत सारे बच्चों को मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त बैटरी के अपोजिट एंड से सॉल्व करते आना है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, A और B। तो इन दोनों के बीच में ये 2 रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के पैरेलल है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये पॉइंट A और यहाँ ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है, मैं वर्टिकली दिखा रहा हूँ।
और इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये रेजिस्टेंस 20 ओहम का है, ये 20 ओहम का है, ये 10 ओहम का है, और ये पीछे से आने वाली लाइन है। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इसमें करंट कितना जाता है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें से दिया हुआ करंट 1 एम्पियर है। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 20 वोल्ट, वही 20 वोल्ट इसके भी अक्रॉस होगा। तो ये 20/10 मतलब यहाँ 2 एम्पियर करंट आएगा। मतलब ए जंक्शन से दोनों तरफ 3 एम्पियर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब ये पीछे से ए जंक्शन की तरफ करंट आना चाहिए 3 एम्पियर। आगे बात समझ में। अब मुझे R2 फाइंड आउट करना है। तो R2 फिर C और A एक ही है क्योंकि इनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये यहाँ मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये तो ये भी इसको पैरेलल ही आ गया है, ये R2 भी। और इसके अक्रॉस, इसके बीच से करंट पास होता है 0 पॉइंट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। तो इसके लिए अगर आप ओहम्स लॉ लगाते हो तो V = IR हम लोग सिंपली कहते हैं। तो यहाँ V है 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट में से करंट पास हो रहा है 0.5 एम्पियर इसमें से, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 मुझे पता नहीं है। तो R2 = 20/0.5 मतलब 20 × 1/1/2, तो ये 40 ओहम होगा। ये 40 ओहम मुझे मिल गया R2। अब C और B के बीच में 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सेल टोटल 69 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, उसमें से 20 वोल्ट तो ये पूरा इधर का पार्ट कंज्यूम कर रहा है, ये सब एक एक मिलके 20 वोल्ट बचा 69 वोल्ट में से ये 20 वोल्ट इन दोनों के बीच में चला गया, यहाँ बचा 49 वोल्ट, इसके अक्रॉस 49 वोल्ट हो गया। अब यहाँ इस जंक्शन को देखो, आगे 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब टोटल करंट यहाँ आ रहा है 3.5 एम्पियर। 3.5 एम्पियर से 3 एम्पियर इधर जा रहा है, फिर ये 3 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और इधर 0.5 एम्पियर जा रहा है, तो 3.5 एम्पियर। अब ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसको आप ओम्स लॉ अप्लाई करो, तो V = फिर से IR कहेंगे, 49 = I की वैल्यू 3.5 मतलब 7/2 × R होगा, 3.5 7/2, तो R = 98 / 7 R1 कहोगा आप इसे, तो ये R1 की वैल्यू आपको 14 ओहम मिल जाएगी। ये 14 ओहम का है, ये 40 ओहम का है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। These are all questions which are there in different books as MCQs, तो आप इसको MCQs करके समझ में ले सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन ले लो। Two resistances 5 ohm and 20 ohm. Two resistances 5 ohm and 20 ohm are connected in parallel, and the combination is connected in series with a resistance of 14 ohm. With a resistance of 14 ohm. And a battery of EMF 180 volt and a battery of EMF 180 volt. Find the current through each resistance. Find the current through each resistance. तो यहाँ सर्किट डायग्राम ना देते हुए उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो हम इसकी सर्किट डायग्राम बना लेंगे। 5 ओहम रेजिस्टेंस के साथ साथ एक 20 ओहम का रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है पैरेलल में, 20 ओहम, और इसके साथ ही आपने एक 14 ओहम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया हुआ है, और यहाँ एक आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है जिसका EMF 180 वोल्ट है,
और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, निग्लिजिबल है, हमने उसको लिया नहीं है क्योंकि दिया नहीं है। अब हर रेजिस्टेंस से हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो पहले तो मैं नेट करंट फाइंड आउट करूंगा, आई पूरे बैटरी में सेंड किया हुआ करंट, और ये करंट यहाँ से आएगा, फिर इधर I1 होगा, इधर I2 होगा, मतलब I का दोनों जगह डिवीजन होगा, फिर यहाँ आके मिल जाएंगे। जैसे कल मैंने बताया था, ये मेले में यहाँ बिछड़ जाते हैं और ये बड़े होके फिर यहाँ मिल जाते हैं, तो यहाँ से फिर I करंट इसमें पास होगा। तो अब एक एक करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम करने के लिए पहले पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 5 × 20 अपॉन 5 + 20, तो ये R12 कहेंगे इसको मैं R1 कहता हूँ, इसको R2 कहता हूँ। तो 1 और 2 का इक्विवेलेंट R12 होगा 100 डिवाइडेड बाय 25, तो इनका 4 ओहम होगा। ये सब हटा दो, एक ही 4 ओहम का आएगा, और इसके साथ में ये 14 ओहम सीरीज में आ जाएगा। तो पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट होगा 4 + 14, मतलब 18 ओहम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब पूरा करंट I = V या E लिखो, आप E/R इक्विवेलेंट लिखो, तो 180 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। मतलब ये 10 एम्पियर करंट है, ये 10 एम्पियर इससे पास हो रहा है, ये 10 एम्पियर इससे पास हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर इनका करंट कैसे फाइंड आउट करना है? कल ही मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, I1 अपॉन I2 = R2 अपॉन R1 ले लो, R2 अपॉन R1, तो यहाँ आप 20/5 ले लो, उल्टा ले लो, तो 4:1 होगा यहाँ पे, 4:1। मतलब टोटल अगर मैं 4:1 में डिवाइड करना है ये करंट को, तो मुझे 5 पार्ट करने पड़ेंगे। I will have to divide this current into 5 parts। 5 में से 4 इसको मिलेगा, 1 इसको मिलेगा। अब 10 एम्पियर के 5 पार्ट हो गए 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर के 4 पार्ट इसको मिल जाएगा, मतलब 2 × 4, यहाँ 8 एम्पियर करंट यहाँ पास होगा, यहाँ 2 एम्पियर करंट पास होगा। क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा करंट अलाउ करेगा अपने से पास होने के लिए। तो 8 × 5 = 40 वोल्ट यहाँ आएगा, 2 × 20 40 वोल्ट यहाँ आएगा। तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें से 5 ओहम में से 8 एम्पियर करंट पास होता है, 20 ओहम में से 2 एम्पियर करंट पास होता है, 14 ओहम से 10 एम्पियर करंट पास होता है। इस तरीके से आप करंट का कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये आपको MCQs और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आ जाएगा। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चंस कुछ आपके लिए लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद आपको थोड़ा धीरे से ये वीडियोस देखने पड़ेंगे। मतलब आपको आइदर यू कैन यूज स्लो स्पीड और यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स, तो आपको हर कंसेप्ट क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सारे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस वर्क्स प्रॉपरली, an electric device works properly if the potential difference across it is 110 volt. If the potential difference across it is 110 volt, when the current in it is found to be 2.4 ampere, when the current in it is found to be 2.4 ampere, what resistance must be connected? What resistance must be connected in series with it? What resistance must be connected in series with it if it is to run on a 230 volt source? If it is to run on a 230 volt source. क्वेश्चन जान लो अच्छे से। मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों को, तो समझ में आता है। आप लोग फॉरेन से कोई इक्विपमेंट लेके आ गए, आप डॉक्टर बन गए या आप कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हो, और एक फॉरेन से कोई मशीन आपने लेके आए हैं। अब वहाँ कंडीशन ऐसी है कि वो मशीन वहाँ 110 वोल्ट सप्लाई पे काम करती है, और वहाँ नेशनल सप्लाई 110 वोल्ट का है। और ये अगर मशीन को मैं एक रेजिस्टेंस की तरह दिखाता हूँ, ये 110 वोल्ट सोर्स चाहिए उसको, मतलब V = 110 वोल्ट,
और करंट की जरूरत है 2.4 एम्पियर, ये अच्छे से काम करता है। लेकिन मैं लाया हूं इसे इंडिया में, ये उसका रेजिस्टेंस है R बच्चों, तो 110/2.4 ये उसका रेजिस्टेंस है, आपको समझ में आ जाएगा ये R। लेकिन इंडिया में सप्लाई है 230 वोल्ट का, इंडिया में सप्लाई है 230 वोल्ट का। अगर मैं उसको डायरेक्टली अप्लाई करूं, उसकी जरूरत 110 वोल्ट की है, आपने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई किया, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तो यहाँ क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ने से डायरेक्टली अगर आप इसको पुट करते हो तो करंट बढ़ेगा और वो मशीन जल जाएगी, तो हमको तो वो नहीं होने देना है। तो हमको क्या करना है कि इसके अक्रॉस 110 ही वोल्ट रखना है, 230 में से 110 वोल्ट मशीन के अक्रॉस, और एडिशनल 120 वोल्ट। आप बोलोगे 120 कहाँ से लाया, तो मैं 230 वोल्ट सप्लाई अप्लाई कर रहा हूँ, तो 110 तो उसकी जरूरत है, 120 वोल्ट एक्स्ट्रा है हमारे पास, वो हमको दूसरी जगह कहीं तो कंज्यूम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यही करंट की कंडीशन ना बदले, करंट अगर बढ़ गया तो एक तो मशीन जलेगी, करंट कम होगा तो फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होगी, तो 2.4 एम्पियर ही करंट हमें चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, और एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं, तो 110 वोल्ट तो मशीन कंज्यूम करेगी और 120 वोल्ट वो आगे वाला रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा, मतलब 230 में से 110 मशीन को प्रॉपर्ली मिल जाएगा और 120 वो रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा। तो अब वो रेजिस्टेंस हमें चाहिए कितने का है, तो देखिए करंट तो वही पास होगा, उसमें भी सीरीज में हमने जोड़ दिया है, तो ये V2 और I तो सेम ही है, तो V2 इज इक्वल टू IR2 कहेंगे हम इसको, तो R2 इज इक्वल टू V2 है 120 डिवाइडेड बाय 2.4 एम्पियर, करंट वही पास होगा इसमें, और ये 1200 डिवाइडेड बाय 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 ओहम रेजिस्टेंस। आपने उसके साथ और एक जोड़ दिया तो आपका फंक्शनिंग करेगा, वो मशीन आप प्रॉपरली यूज कर सकते। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको ये समझने के लिए मैंने इसको ले लिया है। फिर से एक बार बता देता हूँ, देयर इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस which properly works on 110 volt and if 2.4 ampere current is passed through it, means these are the basic requirements. It should have a potential difference of 110 volt so that 2.5 ampere current will pass through it. Now when I was using it at a proper voltage, it was working fine, but I changed the source. Anyway, I have changed the source and I got a 230 volt source. अब मुझे क्या चाहिए कि इसमें केवल 2.4 एम्पियर ही करंट की लिमिटेशन है, अगर करंट ज़्यादा पास हो गया तो एक्सेसिव करंट से वो जल जाएगा, और अगर लो करंट पास किया मैंने तो उसका फंक्शनिंग नहीं होगा, जो मुझे चाहिए वैसे नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये 2.4 एम्पियर करंट ना चेंज हो, क्योंकि उसकी कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट है 2.4 एम्पियर की। अब मेरे पास तो 230 वोल्ट का सप्लाई है, इसकी ज़रूरत 110 वोल्ट की है, तो अब मुझे जो एक्स्ट्रा 120 वोल्ट है वो दूसरी जगह कहीं यूज करना पड़ेगा, वो किसी और जगह रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए यूज करना पड़ेगा। तो वो मैंने एक एडिशनल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया है, तो यहाँ 110 वोल्ट यहाँ कंज्यूम होगा मशीन में या डिवाइस में, और 120 वोल्ट जो एक्स्ट्रा है आपके 230 में से बचा हुआ वो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस खर्च करेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडिशनल रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टर इज इक्वल टू 120 वोल्ट, 230 माइनस 110 इज इक्वल टू 120 वोल्ट। मतलब 110 वोल्ट इसको मिलेगा, 120 वोल्ट इसको मिलेगा, और V2, ये V2 कहता हूं मैं इसको V2 कहेंगे आप, इज इक्वल टू करंट तो सेम ही पास होगा, क्योंकि सीरीज में है तो करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल ही नहीं होता है, जो रेजिस्टेंस जो करंट इससे पास होगा वही इससे पास होगा। तो ये R1 कहो आप इसे, या R2, जो भी नाम देना है, नाम में कुछ रखा नहीं है, R2। तो यहाँ 120 इज इक्वल टू करंट की जरूरत है 2.4 R2, और आपको R2 की वैल्यू मिल जाती है 50 ओम। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं अगर आप MCQ सॉल्व करते हो और आपका अप्रोच उस तरीके से, तो इसका फायदा आपको होता है। व्हाट इज एसेंशियल थिंग इज फॉर सॉल्विंग ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव टू हैव एन अप्रोच लाइक दिस। तो आप लोग सीधा फॉर्मूला में वैल्यू रखते हो, ये करते हो, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। आप उसको ट्रिक पद्धति से कैसे सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते हो, थिंकिंग क्या कर सकते हो, दिमाग का इस्तेमाल किस तरीके से, वो आपको काम में आ जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लो।
और एक क्वेश्चन की तरफ मैं आपका ये कर रहा हूँ, मैं अलग अलग क्वेश्चन से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा। अब रेजिस्टिविटी की कल हमने बात की थी, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये मैंने आपको बताया था। तो रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो वायर सेम मटेरियल्स के हैं तो उनके लिए रो सेम आएगा, अगर क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड होता है, और मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम आती है। ए वायर ऑफ लेंथ 500 सेंटीमीटर, लेंथ है वायर की L1 कहता हूँ इसको मैं, 500 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस है, एंड रेडियस 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओहम। और दूसरी वायर है, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल इज ऑफ लेंथ 20 मीटर, L2 इज इक्वल टू 20 कितना 5 मीटर दिया हुआ है, 25 मीटर, और उसकी डायमीटर दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, मतलब रेडियस होगी 0.25 मिलीमीटर, डायमीटर से आधी रेडियस होगी, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए मटेरियल सेम होने से R का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का रेशियो L2 अपॉन L1 इंटू L2 अपॉन L1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होने से L2 ऊपर आएगा, L1 नीचे आएगा, और यहाँ A1 अपॉन A2 होगा, ध्यान से सुनिएगा, A1 अपॉन A2, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल है तो A1 अपॉन A2 आएगा। तो L2 25 मीटर है और L1 500 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर है। आप दोनों को एक ही यूनिट में ले लो, या तो मीटर में करो या सेंटीमीटर में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटू पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है वायर का, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R स्क्वायर आएगा, ये पाई पाई कैंसिल होगा, यहाँ 5 इंटू R1 इज 0.1 डिवाइडेड बाय 0.25, तो इसको 0.10 लिखता हूँ, का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ 5 इंटू ये डेसिमल पॉइंट हटा दो, 10 अपॉन 25 मतलब 2/5 लिख सकता हूँ, 2/5 का स्क्वायर, तो R2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/25 R1 होगा, तो ये 4/5 इंटू R1 होगा, R1 की वैल्यू 5 ओहम है, तो 4/5 इंटू 5, तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस 4 ओहम होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये रेशियो के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अलग अलग बुक्स में दिखाई देंगे, तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने का ये भी तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसे आप रेजिस्टिविटी कहते हो, दोनों नाम है उसके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, अगर दो अलग अलग वायर से लेकिन मटेरियल उनका सेम है, हाँ शायद उनके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकते हैं, उनके लेंथ अलग अलग हो सकते हैं, एरियाज अलग अलग हो सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरियाज, लेकिन मटेरियल सेम है तो रो की वैल्यू सेम होगी। अब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और रो तो सेम है। अब मेरे पास दो अलग अलग वायर है, एक का रेजिस्टेंस मुझे पता है और उससे दूसरे वायर का रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, तो रेशियो लेना है R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा A1 अपॉन A2। L2 है 25 मीटर, L1 है 5 मीटर, और ये पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल होगा, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर होगा, ये 10 अपॉन 25 मतलब 2/5 का स्क्वायर होगा, तो ये 4/25 होगा, ये 5 5 25, यहाँ पे 4/5 और R1 की वैल्यू 5 है, तो ये 5 भी कैंसिल होगा, 4 ओहम दूसरे वायर का रेजिस्टेंस होगा। ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप इनको किस तरीके से सॉल्व करना है ये तरीका भी आपको मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़िए, नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। When two conductors are connected in series,
when two conductors are connected in series, their effective resistance is 50 ohm. Their effective resistance is 50 ohm. And when connected in parallel, their effective resistance is 12 ohm. Their effective resistance is 12 ohm. Determine the resistance of each conductor. Determine the resistance of each conductor. दो कंडक्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंसेस अननोन है मुझे, तो पहले मैंने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लिया, मतलब RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बच्चों 50 ओम आ गया। लेकिन अगर उनको मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला है, दो के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला यूज करना है। फिर से बता देता हूँ, कल मैंने बताया था 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू R2 प्लस R1, या इसे R1 प्लस R2 लिख सकते हो, अपॉन R1 R2। तो RP इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस है तो ये सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ ये इसकी वैल्यू 12 ओहम दी हुई है, पैरेलल में अगर कनेक्ट करूंगा तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 की R1 प्लस R2 की वैल्यू 50 ऑलरेडी मुझे पता है, इज इक्वल टू 12। तो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 12 इंटू 50, यहाँ 600 आ जाएगा। अब देखिएगा दोनों की सम 50 है और दोनों का प्रोडक्ट 600 है, तो आप ऐसे दो नंबर ढूंढिएगा कि जिनका सम 50 है और जिनका प्रोडक्ट 600 है। आपको समझ में आएगा ये नंबर्स होंगे 30 और 20 या 20 और 30, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें से एक की वैल्यू 20 है, एक की वैल्यू 30 है। R1 इज इक्वल टू 20, ये बाय जजमेंट मैं लिख रहा हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, मुझे करने को आता है, लेकिन मुझे MCQ अगर सॉल्व करना है तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है MCQs के लिए कैलकुलेशन करने के लिए। तो मैं देखूंगा कि इसको मैं चुटकी से कैसे हल करूँ। तो R1 प्लस R2 20 प्लस 30 हो जाएगा 50, और R1 इंटू R2 20 इंटू 30 मिल जाएगा मुझे 600। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दोनों का प्रोडक्ट 600, दोनों की सम 50, ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, समझे। तो ये थोड़ा जजमेंट से आपको आ जाता है। अगर किसी ने मुझे पूछा सर इसको मुझे मैथमेटिकली ही सॉल्व करना है, आप हमको ये शॉर्टकट मत बताइएगा, हमको दूसरा कोई तरीका बताइए। तो देखिएगा R1 प्लस R2 की वैल्यू है 50 और R1 R2 की वैल्यू 600 है, तो मैं इसका यूज करके R1 माइनस R2 की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो R1 माइनस R2 स्क्वायर, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है R1 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा अलग करूंगा, R1 स्क्वायर माइनस की जगह मैं 2R1 R2 कर रहा हूँ, 2R1 R2 प्लस कर रहा हूँ, मतलब अब आगे मैं देखूंगा इसको क्या करने का है। R2 स्क्वायर माइनस 4R1 R2 कर दिया, यहाँ 2 ऐड किया था तो वही माइनस कर दिया और पहले माइनस, तो -2 और -2 माइनस 4R1 R2। अब बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यहाँ R1 प्लस R2 का स्क्वायर, इसके लिए एक फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज किया हूँ। तो -4R1 इंटू R2, तो ये हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2 मतलब 50 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 600 होगा, R1 R2 की वैल्यू 600 है, ये 2500 माइनस 2400, तो ये हो जाएगा 100। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर मुझे मिलेगा 100, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 10 होगा। अब आप देख सकते हो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 50 और R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 10। इन दोनों को ऐड करो, प्लस R2 माइनस R2 कैंसिल होगा, 2R1 इज इक्वल टू 60 होगा, मतलब R1 इज इक्वल टू 30 होगा। दोनों में से एक 30 है, दोनों की सम 50 है, तो दूसरा 20 होगा। आप बोलोगे नाम अलग अलग, तो इसको मैं 30 लिख सकता हूँ, इसको 20 लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ी तो वही है, 30 और 20 की जोड़ी है।
तो एक 30 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली दूसरा 20 आ जाएगा। एक 30 है क्योंकि दोनों मिलके 50 है, तो उसमें से अगर एक 30 है तो दूसरा 20 है, तो इसको मैं R1 कहूँ तो ये R2 होगा, इसको R1 कहूँ तो वो R2 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा 30 और 20 का। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हाँ कॉम्प्लेक्स अगर नंबर्स रहे, कोई आपको डिफिकल्ट आ गया काम करने के लिए तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर आप ऐसा जजमेंट अगर यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आप बोलोगे कि सर ट्रिक कैसे करनी है इसको, तो हम क्या करेंगे कि दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे कि जिनका प्रोडक्ट 600 होगा, इसके फैक्टर्स बनाओ और ये फैक्टर्स में से ऐसे दो फैक्टर चुनो कि जिनकी सम 50 होगी, इससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो आज का यहाँ पे मैं कवर करता हूँ, यहाँ लेक्चर का ही मैं समाप्ति करता हूँ। आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, इससे और बढ़ के इंफॉर्मेशन कल के लेक्चर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, जो अभी मैंने दिया है वो लेक्चर फिर से एक बार सुन लो, और कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, जितनी भी कंसेप्ट में डाउट आ जाएगा आप मुझे पर्सनली मिलने के बाद भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके बाय। चलो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं।